morning to my dear students. Welcome back to Atmi Green School. Today I start with standard 8th. Book Civics, Lesson 5, Judiciary. Okay. Yes, students. In my yesterday's class, I had finished with this lesson. Okay. So today I will start with its activity. That is page number 56. With the help of your teacher, fill in the space in the table below. ये मैंने आपको शायद yesterday कराया है, but फिर भी चलो अगर जिसने नहीं सुना हो तो. That is dispute between center and the state. This is type of dispute. Or example, dissolution of Bihar Assembly. Dispute between two states. Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. Dispute between two citizens. That is dispute between landowner and tenant. Laws that are in violation of the constitution. Seizing of business establishments in Delhi. Second, do you think that any ordinary citizen stands a chance against a politician in this kind of judicial system? If yes, then why? If no, then why not? No, an ordinary citizen does not stand a chance against a politician in this kind of judicial system. This is because judiciary does not enjoy the power to function independently. It works under pressure from the government, okay, and acts on their behalf. Okay, कोई भी जो जुडिशरी में डिसीजन होता है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है. ओके, वो सभी बैठ के उस पर डिसीजन करते हैं. जो रिटायर हो चुके हैं जज सीनियर्स, वो भी उस मामले में डिसीजन करते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए. ओके, एंड ऑब्वियस है ऊपर वालों का प्रेशर आता है, पीछे से थोड़ा बहुत कई बार गवर्नमेंट का भी प्रेशर होता है. किसी केस में, ऐसे दुनिया में बहुत सारे केसेस है, तो किसी केस में कई बार गवर्नमेंट का भी काफ़ी प्रेशर आता है, राइट. एंड जो एक्ट ले करते हैं, ओके, कई बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो एक्ट किया है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है. नो वन, सिटीजन तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही कोई पॉलिटिशियन, ना ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नो वन. ओके, सो ऑन पेज नंबर 57, लिस्ट 2 reasons why you believe an independent judiciary is essential to democracy. 2 reasons why an independent judiciary is essential to democracy are: it provides impartial judgment, which is integral to democracy. Second, it protects the fundamental rights of citizens. Next, page number 59. Write 2 sentences of what you understand about the appellate system from the case State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and other 1985 mentioned in the text. Okay, एक केस था. लेट्स हम भी पढ़ते हैं क्या था ये केस. द appellate system. ओके, मैंने आपको बताया है what was appellate system. It refers to the power of the superior courts to hear and decide appeals against judgment of lower courts. So the appellate system of Indian judiciary is one through which an appeal is made in the higher court against the judgment of the lower court if the person is not satisfied with the verdict. In case State, that is Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others, the 3 accused went to the High Court to appeal against the verdict of the trial court
and later women's organizations appealed against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. Okay, ये जो 3 थे यानी लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, दे वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील कि मतलब कि उनको किस जुर्म में ट्रायल के बेसिस पे यानी किसी को ना जेल पे रखा जाता है। बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, डिटेल्स होती हैं या प्रूफ होती है वो दिखानी पड़ती है। एंड लेटर, और उसके बाद विमेन ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स। मतलब कि एपेलेट सिस्टम वही है ना कि पहले आप छोटे कोर्ट में जाते हो, उसके बाद अगर वो बोले कि नहीं आप ये हम यहाँ नहीं सॉल्व कर पाएंगे, दिस यू हैव टू, इसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो फिर आप छोटे से सब कोर्ट में आपका केस है, मतलब एवरीवन इज नोन टू योर केस, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पास किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से उस पर रेफर करते हैं और फिर उस पर गौर किया जाता है। पेज नंबर 60, that is fill in the table given below based on what you have understand about criminal and civil law. A group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school. तो ये एक क्रिमिनल केस है। विमेन को टॉर्चर करना, विमेन को हैरेसमेंट करना, डाउरी सिस्टम है, फिर विमेन को जला देना, ये सब हमारा क्रिमिनल है। और प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हमें FIR फाइल करना है, किनके अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट FIR फाइल करना है वो इन द केस, फिर ट्रायल जजमेंट, ओके, और फिर FIR फाइल करने के बाद पुलिस उन बंदों को सबसे पहले जेल में डालती है, उसके बाद उनकी सुनवाई होती है, या कोई उनके ट्रायल बेसिस पे जैसे किसी के पेरेंट्स ने लॉयर किया है तो वो फिर प्रूफ लाके दिखाते हैं, फिर ट्रायल बेसिस पे उनको छोड़ा जाता है, लेकिन फिर उनको डेट दी जाती है कि ये टाइम पे ये दिन में आपको हाई कोर्ट हाजिरी देना है। सो ऑल दैट इज प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स। सेकेंड, अ टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। देखो, एक टेनेंट है, टेनेंट यानी किराएदार, ओके, अगर आपने उस पेपर में उसके साथ बॉन्ड साइन किया है कि टेनेंट कम से कम 11 महीने या 10 महीने तक रहेंगे, तो आप बीच में उसे निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई हो, आपको अपना घर बेचना है, मतलब देखो अभी डिफरेंट केस का बहुत, अभी टेनेंट को निकालने के बहुत रीजंस होते हैं। एक तो ये कि उनका नेचर अच्छा नहीं हो, वो बहुत छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते हैं, या वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर पानी नहीं आया हो तो वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, या सफाई नहीं रखते हैं, या तो फिर मतलब कि इलीगल, उनके घर में इलीगल लोग आ रहे हो, या कुछ गलत काम घर में हो रहा हो। सो मतलब कि जो ओनर है उसे पूरा हक है कि वो अपने किराएदार को निकाल दे, ओके। अगर उन्हें ऐसा कुछ गलत लगे हो रहा है तो वो निकाल, अगर नहीं है तो फिर पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, फिर पुलिस आएगी और थोड़ी इंक्वायरी होती है, एंड ओके। सो और अगर नहीं टेनेंट निकल रहा है तो फिर कोर्ट में केस रखा जाता है। दिस इज सिविल लॉ। इसके लिए FIR की ज़रूरत नहीं है। फाइलिंग ऑफ द केस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, ट्रायल एंड रिलीफ टू टेनेंट, मतलब इसमें FIR नहीं कराना होता है। खाली क्रिमिनल केस में सबसे पहले FIR होता है, पहले उस बंदे को जेल में डालते हैं FIR के बाद में प्रोसीजर होता है कि क्या है, ये फिक्स्ड है कि FIR लिखाओ और उस बंदे को पहले जेल के अंदर डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट exercise, we go to exercise. You read that one of the main functions of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? An independent judiciary is essential to carry out its functions of upholding the law and enforcing fundamental rights
so that it can be free of pressure from legislature or executive interference. Yes, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही कहते हैं, इज एसेंशियल, ताकि वो जो उनका जो फंक्शन है वो बहुत अहम होता है। किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, उनका एक ज़रा सा फैसला किसी की ज़िंदगी ले सकता है, उसके परिवार को ख़त्म कर सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी बैड। इसलिए जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, इज़ एसेंशियल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। जो वो लॉ अपहोल्ड कर रहा है, लॉ न्याय, तभी तो विश्वास के साथ लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सच्चे हैं, लीगली से उन्होंने काम किया तो वो ज़रूर उनकी जीत होगी। एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी फ्री फ्रॉम द प्रेशर, और उनके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ लागू की जाती है। बिल्कुल ये लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से एकदम फ्री है। ओनली अ जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस can give fair trial to citizens irrespective of class, caste, religion, sex and other such prejudices. Okay, that is मतलब कि हाँ, कुछ जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस, जैसे कुछ है कि कोई जो इंटरफेरेंस मतलब कि किसी केस में तो है, सब में तो नहीं, पर किसी केस में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो है from legislature or executive interference. Only a judiciary independent of outside interference can give fair trial to citizens irrespective of their caste, class, religion, sex and other prejudices. Now the second question is reread the list of fundamental rights provided in chapter 1. How do you think the right to constitutional remedies connects to the idea or judicial review? The right to constitutional remedies guarantees citizens the right to approach the court directly if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. The judiciary has the power to remove any law passed by the parliament which according to it violates the basic structure of the constitution, that is fundamental rights. Okay, the meaning, the right to constitutional remedies guarantees citizens the right to approach the court directly. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारा एक बहुत ही मतलब हमारा एक वेपन है, क्या कहा जाता है, सिटीजन्स का एक वेपन है। अगर हमें लगे कि हमसे हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ छीना जा रहा है तो हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, या कोई हमें डायरेक्टली बस जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर हमें डायरेक्टली वी कैन नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ओके, हम स्टेट के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। द जुडिशरी हैज़ द पावर to remove any law passed by the parliament which according to it violates the basic structure of the constitution, that is the fundamental rights. This is how the two ideas of right to constitutional remedies and judicial review are connected to each other. Okay, मतलब कि right of constitutional remedies और judiciary review, ये इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। In the following illustration, fill in each tier with the judgment given by the various courts in the Sudha Goel case. सबसे देखो, सबसे नीचे लोअर कोर्ट, देन उसके ऊपर हायर कोर्ट, देन द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट। Convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother Subhas Chandra and sentenced all of three to death. Just wait, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या था। Just give me 1 second please. I'll just
bring the book of this civics. Yes. दैट इज़ मैं आपको ये केस सुनाती हूँ जो स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मी कुमार एंड अदर्स का था ना. लेट्स उसका केस डिस्कस करते हैं. दैट इज़ इन February 1980 की ये बात है. मंथ February ईयर 1980. लक्ष्मण कुमार ने 20 साल की लड़की सुधा गोयल से शादी की थी और वो एक दिल्ली के फ्लैट में रहते थे. किसके साथ? विथ लक्ष्मण ब्रदर एंड देयर फैमिलीज. ओके. ऑन 2 December 1980 सुधा गोयल जल गई और वो मर गई ड्यू टू बर्न्स. हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट. अब जो सुधा के पेरेंट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया. When this case was heard in the trial court, ट्रायल यानी पहले दैट इज लोअर कोर्ट में. ओके. उनके विटनेस के लिए आसपास के नेबर्स को बुलाया गया कि क्या हुआ. कुछ तो पता होता है ना नेबर्स को. दे स्टेटेड कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने बोला, नेबर्स ने बोला कि 1 दिसंबर रात को उन्होंने देखा कि सुधा की बहुत जोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही थी और वो लोग लक्ष्मण की फ्लैट की तरफ जाने लग गए. जब उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा वहाँ पे कि सुधा पूरी तरह से जल रही है, उसके ऊपर आग लगी हुई है और वो जल रही है. वो जल्दी से भाग के गए और उन्होंने वो दरवाज़ा वगैरह तोड़ा जल्दी से और उन्होंने उसके ऊपर वो ब्लैंकेट दिया. सुधा इन अ गनी बैग एंड ब्लैंकेट. सुधा टोल्ड दैट माय मदर इन लॉ शकुंतला. सुधा ने बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ऊपर केरोसिन डाला और मुझे मारने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने आग लगाई मेरे ऊपर. During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and they were demanding more cash. और वो लोगों ने बताया कोर्ट को कि सुधा के जो इन-लॉज हैं वो बहुत उसे परेशान करते थे, उसे मारते थे और उसे कहते थे कि तू जा अपने घर जाके कैश लेके आ, हमें स्कूटर चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire when she was heating meal. और जब भी इंक्वायरी हुई और सुधा की मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं ये सब झूठ है, वो दूध गर्म कर रही थी तो कुदरती उसकी सारी आग के अंदर जल गई. द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस. अब जब नेबर्स ये बात कहेंगे तो कुछ तो है, तभी तो नेबर्स को ये बात कैसे पता चली कि वो लोग उसको टॉर्चर करते हैं, वो लोग उससे फ्रिज मांगते हैं, स्कूटर मांगते हैं, ये है वो है. ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र और ये तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने डेथ का हुक्म दे दिया कि तीनों को सजाए मौत होनी चाहिए, है ना.
इन नवंबर 1983 ये तीनों को हाई कोर्ट में बुलाया गया और उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग, मतलब ठीक है अगर लोअर कोर्ट ने भी सुनी है तो हाई कोर्ट में अगर केस जाता है तो वो भी सुनता है. जब उसने पूरी आर्गुमेंट सुनी लॉयर्स की आपस में उनकी, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज बाय द केरोसिन स्टफ. और जब भी वो मतलब कि वो उनकी बात सुनी इनकी, जब भी पूरे लॉयर्स की और एविडेंस की, ओके तो मतलब उनसे पता चला कि यस ये बात सच्चाई है कि सुधा को इन्होंने जला के नहीं मारा, वो कुदरती उसकी सारी मतलब कुछ हवा होगी कुछ होगी और उसकी सारी उसमें जल गई, उसे पता नहीं चला और जल गई वो. और कोर्ट ने लक्ष्मण शकुंतला और मतलब लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी. और जब ये केस की उन्होंने बोला कि नहीं ये हम ये केस हाई कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो जब हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलील सुनी, सब कुछ सुना, तो उन्होंने बोला कि यस ये लोग तो निर्दोष है, वो तो एक्सीडेंटल केस था, इन्होंने नहीं मारा, और वर एक्विटेड, उनको छोड़ दिया गया. एक्विटेड क्या होता है? The court declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried by the court. You may remember the photo essay on the women's. मेरा वो मोबाइल में बना ना, मैंने कल भेजा था. You read about how in the 1980s women's group, मैं करूँगी तुम बना दे. You read about how in 1980s women's groups across the country spoke out against dowry deaths. They protested against a failure of courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. मतलब लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो बोल रहे थे कि इनको सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके जाया जाए. कई बार कुछ क्लियर नहीं होता है. इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण द 2 members ऑफ दिस फैमिली. फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया क्योंकि जो सुधा के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ओके इन्होंने पैसा दिया हुआ है ज़्यादा लॉयर को और इंसाफ नहीं हुआ है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए. और वहाँ पे गया. द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट. दे फाउंड लक्ष्मण, और उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि ये डिसीजन सही नहीं है, वो लोग झूठे हैं, दे आर द कल्प्रिट. दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड the brother-in-law Subhash because they did not have even evidence against him. और उसके जो भाई है सुबेश को उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी उनको एविडेंस नहीं मिला. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. ओके मतलब कि बाकी लोगों को डेथ का करार दे दिया, सुभाष को खाली प्रिजन में रखा. बिकॉज है ही ना, अगर आप गिल्टी नहीं भी हो और आप गिल्टी का साथ दे रहे हो तो यू आर ऑल्सो द गिल्टी. तो उसे जेल भेजा गया और बाकी लोगों को सजा. सोचो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट अगर रिश्वत लेके उसे छोड़ देती तो क्या होता, न्याय नहीं मिलता ना. तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला एकदम अहम होता है और वाकई ये लोग गिल्टी थे. ओके you can see the pics. ये देखो पार्लियामेंट हाउस ऑन पेज नंबर 54. पार्लियामेंट हाउस. फिर सुप्रीम कोर्ट was established on 26 January 1950, the day India became a republic. Like its predecessor, the Federal Court of India, it was earlier located in the chambers of Princess in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. Then you can see peace and justice, strong institutions.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG ऑन पेज 57। और ये पिरामिड आप देख रहे हो, पिरामिड सबसे नीचे लोअर कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट एंड द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट। सी ऑन पेज नंबर 58, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक, ऐजवाल बेंच ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, मिजोरम, देन नामची साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नामची साउथ सिक्किम। Then on page number 60, see you can see the difference between the criminal law and the civil law. Okay, learn this. Then on page number 61, in photo 1, see there are 4 photos. In photo 1, in 2001, the drought of Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food. Photo 2, meanwhile the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. Photo 3, in this situation of hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties, or PUCL, that is People's Union of Civil Liberties, filed a PIL in the Supreme. It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution, including the right of food. The state's excuse that it does not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state has a duty to provide food to all. PIL case file किया against their state. Photo 4, it is therefore directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, and to provide midday meals to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. देखो ये कैसे खाना प्रोवाइड हो रहा है, और ये लोग देते हैं कि नहीं अच्छी तरह से बच्चों को पेट भर के, कि थोड़ा से खाना देते हैं, बाकी ये लोग अपने में बांट देते हैं। ये सब के लिए मतलब कि